Hello everyone, and welcome to Vidigi After College series of Topper Talks for CLAT PG 2026. Today we have with us Devanshi Bang, who has achieved a great success. She has achieved AR 130. So, hello Devanshi, congratulations for achieving such a great success. Hello, sir. Thank you so much. Thank you. So the first question which I want to ask you, कि how did you decide to go for LLM? कि you are in your fifth year right now, you are doing LLB, BLLB from a very reputed college that is MNLU Nagpur. So what was the back of your mind? कि how did you make that you want to do LLM after your graduation? Since I'm in my fifth year, I've explored various fields, like multiple fields during my law school journey, like doing internships in corporate, then in courtrooms, then also in PSUs also. But then gradually I started developing interest in academia. Like I wanted in my fourth year, I was pretty sure that I wanted to pursue academia. So for that, I needed to do LLM and then clear UGC NET and JRF and pursue academia. And I wanted to do LLM from top university only. Since I'm from NLUs, I wanted to do LLM from NLU only. So Right, I right. started preparation early, and then for Okay. academia, I went to LLM. So as we know that the first allotment list is out, so which college did you get in your allotments list? So right now I got NLU Jodhpur. So since I'm from Jodhpur, I put NLU Bangalore as my first preference and then NLU Jodhpur. So Okay. I think in second, third list I can get NLU Bangalore, but right now NLU Jodhpur. Okay, so you are targeting NLS Bangalore only, right? Yes, yes. Okay, so if I'm saying that you have started your preparation in your fifth year itself, or have you started your preparation in your fourth or third year? When did you start your preparation for CLAT PG specifically? So I started my preparation. Yeah, so I started my preparation in July month only, like in my fifth year only. अच्छा. So in end July. So I will not say that I've started my preparation too early, too late only, but yeah, I started in end of July, and I was pretty sure that I have to balance my academics, college academics, and my preparation also. So मेरे नवंबर एंड में एंड सेम्स होते हैं एंड देन एंड ऑफ अगस्त में मिड सेम्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बट देन ड्यू टू structured planning, like timely planning, like I have to dedicate 5 hours to my CLAT PG preparation, तो उसको देना ही देना है, so there will be no compromise in that. So Yes. So due if to you would have structured started early a planning. bit, if you would have started early, you would have strategized your preparation much easier way. You wouldn't have to give 5 hours daily for CLAT PG if you would have started early, right? Yes, yes. I started a bit late, though I used to study thoda like in from July, from June month only, but properly structured manner may I started in end of July. So Okay. I got only like 4 months, and in that 4 months also I You had had my midterm exams also. and terms, yes. So what about that? There are many subjects. If I'm saying that there are at least 22 subjects that you have to cover in this period. So the syllabus is majorly talking about the general topics that law of contract is there, say family law is there. But what all are covered in that? If we are saying that in family law you have to cover Hindu law, in that various acts are there, Muslim law, the related topics like domestic violence also have to cover, special marriage act also has to be covered. So what about that? Did you cover all the subjects or give preference to certain acts only? Okay, so firstly, before starting my preparation only, I analyzed like 10 past year papers. So उसमें से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि what CLAT PG is particularly focusing on. So they are focusing, जैसे अभी अभी में in recent 2 to 3 years they are focusing on company law also. और हम्म. company law में भी specific topics. So अभी जैसे SEBI, so पिछले 2 साल से they are putting SEBI. हाँ. SEBI में भी मेन टॉपिक्स, सो पास्ट ईयर पेपर्स के ट्रेंड से बहुत पता चल जाता है कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड ऑल्सो रीसेंट जजमेंट से भी टॉपिक्स पता चल जाता है, जैसे अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो
था, तो उससे भी बहुत पता चल जाता है कि इसके रिवॉल्व अराउंड भी क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे वाना शक्ति जजमेंट हो गया, जो हम्म। लास्ट 15 डेज में आया था, सिर्फ लास्ट 15 डेज में। बिल्कुल। और मेनी एस्पिरेंट्स आई थिंक दे स्किप, कि नवंबर मंथ का तो स्किप कर ही देते हैं, पेपर तो बन गया होगा। बट हाँ। ऐसा नहीं होता, पेपर नहीं बना होता है। और वाना शक्ति जजमेंट लिटरली नवंबर 10-12 में आया था, बिल्कुल। उसका डिलीवर हुआ था वर्डिक्ट, फिर भी वो पेपर में आ गया था। सो आई हम्म। थिंक न्यूज को एनालाइज बहुत ढंग से करना पड़ता है, लीगल डेवलपमेंट्स हो गया, तो उससे टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है, क्रिमिनल लॉज में जैसे अभी रेप के ज्यादा वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, मर्डर के ज्यादा वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, तो वो Yes. कैसे, तो उससे बहुत पता चल जाता है So you जजमेंट से। have to be keep yourself updated with the legal updates also. कि whatever is coming in this particular year, you have to see what are the related laws with that, right? Yes, so it helps a lot because SCC लो, so I रोज मैं एससीसी ऑब्जर्वर जरूर पढ़ती थी, बिकॉज उससे सारे जजमेंट्स, आई यूज टू रीड ऑल द जजमेंट, ऐसा नहीं कि कोई 5 बेंच है तो वही पढ़ते हैं, हाँ वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाते हैं, बट अगर आप सारे जजमेंट्स रोज गो थ्रू करते हो तो आपको टॉपिक्स भी कवर होता है उससे, कि Yes, क्या right. चल रहा है, और वही टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में। हाँ। एंड व्हाट अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स की, इफ आई एम सेइंग दैट जूरिस्प्रूडेंस हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, तो इसमें आपको लीगल अपडेट से नहीं पता चल पाएगा कि व्हाट ऑल वी हैव टू कवर और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो व्हाट अबाउट दैट, डिड यू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स और ऑल द बेयर एक्ट्स? No, no, since I had less time only, so I covered important topics so like indemnity guarantee. So in contracts, उसमें legal updates इतना नहीं रहता, हम्म। jurisprudence में भी इतना नहीं रहता, बट पास्ट ईयर ट्रेंड से थोड़ा पता चल जाता है कि ऑस्टिन की थ्योरी ज्यादा आ रही है, बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी ज्यादा आ रही है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे इंडेमनिटी गारंटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, हम्म। कंसिडरेशन, ये थोड़े पता चल जाता है। जैसे लॉ स्कूल जर्नी थोड़ी हेल्प करती है, बिकॉज पता चल जाता है कि टीचर्स भी किस पे बिल्कुल। फोकस ज्यादा करते हैं, बिल्कुल। तो उससे भी बहुत पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो उससे फिर आप कवर कर सकते हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट से जुरिस्प्रूडेंस कवर हो जाता है, बिकॉज इस एग्जाम में भी जुरिस्प्रूडेंस पूरा पैसेज से कवर हो रहा था। हाँ, कि वो तो इस स्पेसिफिक एग्जाम की बात थी कि अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स भी देखें तो जूरिस्प्रूडेंस वाज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स विच वाज गिवन हाई वेटेज, कि जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो उसके लिए भी पूरा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना, या फिर स्पेसिफिक स्कूल्स आपने टारगेट करे या फिर जूरिस्ट टारगेट करे, कैसे टारगेट किया था? आई थिंक मैंने मेन मेन ज्यूरिस टारगेट करे थे, लाइक ऑस्टिन हो गया, और उसके शॉर्ट नोट्स हार्ट बना लिए फुलर होंगे। थ्योरी हो गया, उसके शॉर्ट नोट्स हो गए थे, तो मेन मेन ज्यूरिस्ट, और वही आई थिंक लास्ट 10 years में वही ज्यूरिस्ट को वो लोग हाँ। बार बार रिपीट में बस बस। पूछते हैं, और बिकॉज उनको भी पता रहता है कि सबको इतना एकदम डीप नॉलेज नहीं होगा, जैसे इमैनुअल कैंट हो गया, तो उसकी हम्म। इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है जितनी जैसे ऑस्टिन की है, तो बिल्कुल। उनको भी पता रहता है कि कितना क्या हाँ, होता है, तो इसलिए कि जब मेन आपने, मेन। इफ यू हैव गिवन पास्ट ईयर्स पेपर्स, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, तो जब भी इस पेपर में जैसे हमने देखा कि पास्ट ईयर के पेपर्स के डायरेक्ट पैसेजेस और क्वेश्चन आ गए होंगे, तो वो देख के आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ, मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए थे। हाँ, वो अच्छा तो लगा था, बट एक पॉइंट पे बुरा भी लगा था, बिकॉज एग्जैक्ट कॉपी थे कुछ कुछ हाँ। क्वेश्चन, और मैंने इतना डीपली उन जैसे जजमेंट्स को जैसे रट्टा नहीं मारा था, अब जैसे संपत कुमार वाला हो गया, तो मैंने हम्म। इतना डीपली उनको एनालाइज नहीं किया था, मुझे लगा था कि हाँ उसके रिवॉल्व टॉपिक्स आएंगे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने हाँ, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट प्रेडिक्ट नहीं नहीं कर रहा किया था था। कि एग्जैक्ट पैसेजेस क्वेश्चंस दे देंगे, और हाँ, देयर वर मेनी बट इट क्वेश्चंस वर हेल्प। लाइक दैट। सो ये हाँ, भी बट मैं आई थिंक बोलूंगा। इट हेल्प। हाँ, हाँ। बट पास्ट ईयर को एनालाइज करना और मॉक्स को एनालाइज करना भी बहुत हेल्प करता है, तो मॉक्स के जो टॉपिक्स रहते हैं, सो व्हाट आई डिड वाज कि जैसे जो मॉक्स में करती थी उनको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक वर्ड फाइल बना दी थी, कि अगर प्रेसिडेंट का कोई टॉपिक आ रहा है तो प्रेसिडेंट का टॉपिक इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन उस प्रेसिडेंट के रिवॉल्व जितने भी टॉपिक्स होते थे आई यूज टू रीड, तो उससे भी बहुत सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, हाँ। तो एक वो चीज भी रहती है, तो वो मुझे बहुत हेल्प की थी, जो वर्ड फाइल रिवीजन के लिए बनाई थी टॉपिक वाइज, तो इट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, कि जितने yes. टॉपिक्स कवर होते थे मॉक में उतने मैं रिवाइज कर सकती थी। क्योंकि नॉट गिविंग मॉक्स इज द प्रॉब्लम, कि एनालाइजिंग, नॉट एनालाइजिंग इज द प्रॉब्लम। इफ यू हैव गिवन द मॉक्स, इफ यू हैव सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स, बट इफ यू हैव नॉट एनालाइज देम, यू वुडंट बी नोइंग कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन इन द पेपर। सो गुड फॉर दैट कि यू हैव टू एनालाइज योर पेपर्स ऑल्सो।
राइट। यस, सो व्हाट मेनी पीपल डू इज दे जस्ट सी कि हाँ ये मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए हैं, तो बस दैट्स इट। सो बट करेक्ट क्वेश्चंस को तो इतना देखना ही नहीं होता, इनकरेक्ट को ज्यादा देखना होता है, बिकॉज हाँ। उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि आप क्यों गलत हो रहे हो, बार बार आप किस चीज पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज practicing mocks on OMR sheet. So like I बिल्कुल। myself did not practice much on OMR sheet. So मुझे अभी भी इतना regret होता है, like my three questions, literally my three questions went wrong in my paper because मुझे जो ऑप्शन करना था वो मैंने नहीं किया, कोई और ऑप्शन ही मैंने फिल कर दिया। सो प्रैक्टिसिंग ऑन OMR शीट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पेपर? कि पेपर देखा तो कैसा लगा, कि हाँ ये टॉपिक सिमिलर दिख रहे हैं, या फिर मुझे आते हैं ऐसा लगा, या फिर बहुत ही अलग लगा पेपर? क्योंकि दिस वाज पेपर, एन इजी हाँ, पेपर एज या कंपेयर इट टू वाज लास्ट इजी ईयर। पेपर। हाँ ये, हाँ, लाइक मोस्टली टॉपिक्स तो लाइक आई रिकग्नाइज्ड कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। ज्यादा टॉपिक्स तो नहीं थे जो एकदम ही मुझे ऐसे बियॉन्ड ही कुछ लगा कि कुछ अलग ही दे दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो पास्ट ईयर के ही थे, तो हाँ। वो तो देख ही रखे थे, और कुछ कुछ लीगल डेवलपमेंट्स में थे, लीगल अपडेट्स पे थे। तो हाँ इट वाज एन इजी पेपर, बट वही था थोड़ा सा लेंदी, आई फाउंड इट लेंदी। सो या टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू था, बट या बट मॉक्स भी हेल्प करते, बिकॉज मॉक्स में आप टाइम मैनेज बहुत एफिशिएंटली अगर आप कर पाते हो, आपकी प्रैक्टिस हो हम्म। जाती है। तो पेपर में लाइक आई यूज टू कंप्लीट माई मॉक्स बाय 50 मिनट, लाइक 50-55 मिनट्स मैक्स, क्योंकि मुझे पता था कि एक्चुअल जो टाइम प्रेशर होगा उस टाइम एंजाइटी होगी, उसमें मुझे हम्म। हाफ आवर ज्यादा चाहिए होगा। तो हाँ। ऐसे करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि अगर आप मॉक्स थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो, तो आपका एक्चुअल पेपर भी हो जाएगा मैनेज। हम्म। और जैसे मॉक्स हम देते हैं तो उसका स्टैंडर्ड कैसा लगता था, कि स्टैंडर्ड ऑफ द मॉक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, क्या वो मैच किया? कि हमको लग रहा था कि हाँ अगर मेरे मॉक्स में फ्लक्चुएशन हो रहे मार्क्स का, तो हो सकता है कि मुझे और तैयारी की जरूरत है। हाँ आई थिंक वो मॉक टू मॉक डिफर करता है, जैसे कुछ मॉक्स इजी होते थे तो ऐसे लगता था एक्चुअल पेपर तो इतना इजी नहीं रहता, और कुछ मॉक्स कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होते थे। तो मॉक्स थोड़े सिमिलर होते हैं बट थोड़े नहीं भी होते हाँ। हैं। और जैसे बट एक, ये है कि मेनली मॉक्स को टॉपिक्स के लिए करना चाहिए, बिल्कुल, कि कि क्या टॉपिक्स आपके टॉपिक्स कवर हो इस जाए। अभी टाइम पे चल रहे हैं, क्या टॉपिक्स के ऊपर आपको हम्म। पैसेजेस आ सकते हैं, उसके लिए आपको देखने के लिए जितने नंबर ऑफ मार्क्स आप दे सकते हो ना, वो देने चाहिए, कि पता चले, एक आइडिया मिले अपन को कि पेपर कैसा हो सकता है। उसके बाद जैसे अगर हम हाँ देखें कि इंटरनेशनल लॉ पे भी क्वेश्चंस थे, दो पैसेजेस थे इंटरनेशनल लॉ पे ऊपर। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल लॉ? इफ दे आर सेइंग दैट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो उसमें आपने क्या कवर किया, कि क्या क्या देखा आपने? जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत डिफरेंट थे, मतलब वो पूरे ही न्यू थे, मैंने उनके बारे में इतना कभी पढ़ा नहीं था। वो बहुत डीप क्वेश्चंस थे जो पैसेज से भी सॉल्व हो रहे थे हम्म। ऑल दो, बट अगर नहीं सॉल्व होते तो वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, क्योंकि मैंने बेसिक जैसे जो इंटरनेशनल, जैसे क्लाइमेट चेंज का भी जो केस, हम्म। इंटरनेशनल जो केस चल रहा था, तो एक वो हो गया था, तो मुझे लगा था क्लाइमेट चेंज के रिवॉल्व आएगा या रशिया यूक्रेन के रिवॉल्व आएगा। तो वो मैंने किए थे उनके अराउंड टॉपिक्स ही। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप कर लोगे तो आप पेपर में आपको कुछ इतना अलग नहीं लगेगा, मतलब आप कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। हाँ। एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन अटेम्प्टिंग पेपर? कि डिड यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और डिड यू लीव द क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैड सम कंफ्यूजन्स? जैसे एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते थे, तो पहले मैं उनको नॉर्मली OMR शीट फिल नहीं करती थी, 5 क्वेश्चंस को करती थी, फिर OMR शीट आई यूज टू फिल। तो जो मुझे नहीं आता था देन आई यूज टू मेक अ मार्क कि ये मुझे लास्ट में आके इसको वापस देखना है। अदरवाइज मैं 5 क्वेश्चंस को एक साथ फिल करती थी। ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया एंड माई OMR शीट इज ब्लैंक, हाँ, बिकॉज दैट इज द उसमें बहुत रॉन्ग ज्यादा थिंग। एंजाइटी और हाँ। प्रेशर आ जाता है कि टाइम ही नहीं बचा और OMR शीट पूरी ब्लैंक है। तो आई थिंक दिस 5 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी वर्क्स, बिकॉज वो पैसेज के 5 क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चंस भी इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो यू हम्म। शुड नॉट जस्ट डू वन क्वेश्चन का ये OMR है, डू ऑल दी 5 क्वेश्चंस एंड देन फिल दी OMR शीट, And what बिकॉज about the क्वेश्चंस overall ज्यादा थे। attempted questions? How many did you attempt? Did you attempt all 120 questions, or around नो that? नो, आई अटेम्प्टेड 113 क्वेश्चंस। Okay. So your accuracy was good.
Yeah, so I did not check my accuracy. So I got like 83 marks and then 113 I attempted. So Okay. yeah, और जो 7 questions I left because मुझे उनका बिल्कुल idea नहीं था. So you should not attempt because negative marking is there और उसका मुझे हाँ. बिल्कुल भी idea नहीं था. So I left. बाकी हाँ कुछ कुछ guess work भी था like smart guess work. Like some Hmm. educated guess work भी मारा था कि हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे because topics were ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो मैंने कभी देखा नहीं था इंटरनेशनल लॉ का जरूर था तो उसके क्वेश्चंस आई मिस्ड बाकी तो या इट वाज एन एवरेज पेपर Okay. सो So this योर was. अटेम्प्ट्स शुड बी मोर आई थिंक योर अटेम्प्ट्स शुड बी मोर थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाता है अगर अटेम्प्ट्स ही मेरे बिलो 100 होते तो आई हाँ. वुडंट हैव स्कोर्ड So what tips would you want to give to the CLAT aspirants who are preparing for CLAT 27 PG exam? What mistakes did you give and what mistake did you do and what attempts should have been done by your side? So my biggest advice would be to practice mocks on OMR sheet as far as possible because आपको actual paper का environment पता चलता है कि आपको कैसे pressure आ रहा है क्या हो रहा है क्या factors जो आपको affect कर रहे हैं also giving more and more mocks analyzing mocks properly like analyzing mocks topic wise subject wise and not just leaving it to yeah my questions are correct just leave it so and then smart revision also like strategic revision if you're doing it with this academics like with fifth year only you're giving your CLAT PG so strategic time management is also very important like give 4 to 5 hours daily to CLAT PG anyhow because otherwise it will become very difficult to cover all the topics and be updated with all the judgments like not just important judgments but all the judgments coming in SEC Observer or any other website one is using so that you can cover your topics also from that legal developments legal judgments also Okay. so yeah Okay. Thank you, Devanshi, and best of luck for your future endeavors. thank you so much sir it was great thank you